Hello everyone, good morning. Welcome you back in the revision of word problems of linear equations. So let's start this again. Okay, we have done a sort of revision of solving linear equations so many times. You must have solved so many different questions. So here we have come to the point that where word problems becoming quite difficult for you. तो हमने क्या किया? We are shifting our complete focus towards word problem for a few days and then we will be completing it. So let's start, let's understand. So what we have seen yesterday, all that if you keep in front of you will be helpful for you for solving all these questions, and of course I'll be teaching you that. The perimeter of rectangle, of course, whenever it is asked for the perimeter of rectangle or perimeter of any other object, first of all write the formula. Perimeter of rectangle is equals to 2 into bracket L plus B. Here we are given that rectangle is 13, matlab perimeter is 13, is equals to 2 into bracket width, that means breadth. So it is L plus 2 integer 3 by 4. So 2 4s are 8, 8 plus 3 11. So it is 11 by 4. That's it. This is going to be my equation. I can consider let length of the rectangle be equal to x. So I think the equation is done for you. 13 is equals to 2 into x plus 11 by 4. You may able to cross multiply here itself, or shifting to the other side. I get 13 by 2 is equals to x plus 11 by 4, whereas 11 by 4 if I shift the other side I get the value of x, and which would be directly giving us length. That's it. Next one, the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. तो यहाँ पे मुझे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल को x कंसिडर करना पड़ेगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर विल बी इक्वल टू 3x एज वी सी 3 times the साहिल्स. So after 5 years, if I talk about after 5 years, so don't read anything after that. First of all, after 5 years, what you can say about Sahil's age, that you write. So Sahil's age will be equal to x plus 5 and mother's age will be equal to 3x plus 5. So remember this very important thing it is. तो पहले एज को पहले लिख लो कि what that age will be after 5 years, and then think about it, then read the next part. Their ages will be add up to give you 66. That means x plus 5 plus 3x plus 5, that addition, this plus this is equal to 66, and then you can write the answers. You can complete it. Okay, so it's easy. 3x plus x is 4x plus 10 is equals to 66. 10 को इधर शिफ्ट किया, then 4 को किया, तो you get x which will be the present age of Sahil, and into 3 किया तो that will be present age of your Sahil's mother. That's it. तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं. Bansi has 3 times as many as the 2 rupee coin as he has 5 rupee coin. Bansi has 3 times as many Bansi has 3 times as many 2 rupee coin as he has 5 rupee coin. Bansi has 3 times as many 2 rupee coin he has. I am not understanding which one should be taken as x. What kind of a construction it is. Okay, so I would say कि 5 rupee coin को अगर मैंने x कंसिडर किया तो 2 rupee coin would be 3x. Okay, so construction is bit confusing as I see, but anyway, तो हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं. तो 2 rupee coin, rupees 2 coin are 3x and rupee 5 coin are x. तो अमाउंट क्या होगा, देखो जब भी कॉइन या फिर करेंसी का आ जाए तो उसका अमाउंट भी लिख लो. तो अमाउंट विल बी इक्वल टू 2 into 3x. 3x is number of coin, so it will be 2 into 3x, and amount in this case will be equal to 5 into x. ठीक है, तो multiplying by the particular amount will give us the amount, total amount. So the total amount, that means addition of all that, so 6x plus 5x is equals to 77. How is that? I hope you understood it. 2 into 3 is 6x and this will be 5x. So this का addition क्या होगा? 77. X will be 11x will be equal to 77. You can easily get x. Once you get x, you can get the 3x as well.
सम ऑफ थ्री consecutive numbers और मल्टीपल्स ऑफ 11. तो 1x हो तो दूसरा होगा x प्लस 11, तीसरा होगा x प्लस 22 as we have already stated. Sum, तो x plus 11 plus x plus 22 is going to be equal to 63, and you can easily solve this equation. So I am here not to solve the equations. I am here to just help you or guide you how can we get the answers. That's it. Okay. डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर्स इज 66. इसको दो वे से सॉल्व कर सकते हैं. वन, व्हाट यू कैन थिंक अबाउट इज नथिंग बट डिफरेंस 66 है. तो एक नंबर x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 66. ये मैंने कल ही बता दिया था कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर हो, सम ऑफ टू नंबर्स हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर राइटिंग दोज नंबर्स एज इन दिस वे. ओके, एंड सम हो तो सब माइनस में लिखना है. अगर सम 66 होता तो x एंड 66 minus x हम लोग करते हैं. So this was the basically a way that what I can say you can use it. The ratio of these two numbers मतलब x upon x plus 66 is equal to 2 upon 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x plus 2 into bracket x plus 66 is going to be equal, and you can easily solve the equation by multiplying by 2. That's it. This is one way. Second way is if I take a ratio, let the common multiple of the ratio be x. Okay, so the number be 2x and 5x, and difference between these two numbers, that means what I can say is 5x minus 2x is equals to 66. Even this can be another way. Any which ways you get the same answer. ये थोड़ा easy लग रहा है, but of course it up to you. Okay, what you remember. But हाँ, ये याद रखो इस चीज़ को कि difference का मतलब होता है in this manner you have to take it. Okay, done. Next question. Devanshi has total amount of this one. ये currency वाला question है, ठीक है. Total amount है ये amount. The currency note in the denominations of 50 rupee, 10 rupee and 20 rupee. The ratio of numbers of 50 rupee note and 20 rupee note is 3:5. That means rupees 50 notes are 3x and rupees 20 notes are 5x. तो इसका मतलब हम लोग अमाउंट लिखते हैं. इसका अमाउंट क्या होगा, इसका भी अमाउंट लिखेंगे हम लोग. ओके, अमाउंट क्या होता है, ये तो नंबर है, नंबर इंटू 50, तो 50 इंटू 3x एंड ये होगा 20 इंटू 5x. तो अमाउंट क्या होगा देखते हैं, 3 5 15, 150x एंड 100x. ये हो गया हमारा अमाउंट है, ये हो गया नंबर, ठीक है, नंबर ही अमाउंट है. और कुछ दिए, इफ़ शी हैज़ टोटल 25 नोट्स. हाँ, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि टोटल उसके पास 25 ही नोट्स हैं, ठीक है. तो टोटल जो उसके पास नोट्स है वो कितने हैं, 25. ओके, 25 नोट्स है उसके पास. इसका मतलब क्या हो गया, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो रिमेनिंग है ₹10 नोट्स है, वो 25 में से लेफ्ट आउट नोट्स है. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? 25 में से लेफ्ट आउट. तो 25 में से लेफ्ट आउट मतलब क्या, देखो 20 रुपीज़ के नोट 5x है, 50 रुपीज़ के नोट 3x है. 5x एंड 3x कितना होता है, 5x एंड 3x हो जाता है 8x. तो हमारा जो बचा हुआ होगा वो होगा 25 माइनस 8x इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 रुपीज़. तो इसका अमाउंट कितना होगा, इसका अमाउंट होगा 10 इंटू 25 माइनस 8x. तो दैट वुड बी मे बी 250 माइनस 80x. जो भी होगा ये अमाउंट है. ओके, तो आई होप यू आर क्लियर. अगेन आई रिपीट, देखो, ट्राई टू नो दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. टोटल उसके पास 25 नोट्स हैं. 3x एंड 5x दीज आर नथिंग बट द व्हाट यू से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 20 एंड 50. तो रिमेनिंग विल बी द 10 रुपी नोट. तो 25 माइनस 3x एंड 5x का एडिशन, दैट इज 8x, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ 10 रुपी नोट. अमाउंट आ गया. अभी इक्वेशन कैसे बनेगा, इन सब का एडिशन, मतलब अमाउंट का एडिशन उसके पास कितना है, 590 है. दैट मीन्स 150
प्लस 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 590 एंड हियर इज द इक्वेशन। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, दैट्स नॉट द बिग डील, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव द डायरेक्ट एक्सरसाइज। तो जिस जहाँ पे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगा वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, अदरवाइज यू हैव टू प्लान द एक्सरसाइज। तो आज के दिन में आपने क्या करना है, ये पहला वाला जो सेकंड वाला जो एक्सरसाइज है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है फर्स्ट टाइम, वो आपको जस्ट यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, सो आई जस्ट एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट योर simple word problems of your question exercise number 2.2. okay, so if you subtract a number and multiply the result by this you get this, ये easy है। I don't say that if you subtract a number from a number, तो from number को x करो तो x minus 1/2 into 1/2 is equal to 1/8 कर दो तो इक्वेशन मिल जाएगा आपको। पेरीमीटर, ये क्वेश्चन करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या ले है 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी हमें लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में क्या दिया देखते हैं। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। ब्रेथ को एक्स कंसिडर करना है, फिर ये तो हमने देखा था, कल ही देखा ना। 2 मीटर मोर देन का मतलब क्या होता है, तो लेंथ विल बी इक्वल टू 2 मीटर मोर देन डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ये लेंथ है एंड ब्रेथ क्या है, एक्स है। तो बस पेरीमीटर 154 पुट किया, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ पुट किया 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ मतलब x पुट किया। देखो ये 2x प्लस 2 और ये ब्रेथ। ओके, ये देखो इस स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है ये हमने कल ही देखा है। इस स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है जो मैंने अभी भी मार्क किया, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे इसको समझना है तो हमने कल देखा है। एंड पेरीमीटर का इक्वेशन कैसे आता है ये हमने समझ लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो मैंने बोला था ना, पेरीमीटर के सारे फॉर्मूले याद करना है। ट्रायंगल का पहले पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c, मतलब तीनों साइड्स का एडिशन। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4.3, मतलब एक साइड दिया हुआ है 4.3। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 15 4 60 प्लस 62 अपॉन 15, पेरीमीटर हो गया। एक साइड दिया है 4/3 प्लस फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड मतलब जो इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों इक्वल है तो एक x होगा दूसरा भी x होगा, तो x प्लस x ये इधर शिफ्ट हो गया तो आपको 2x मिल जाएगा एंड देन यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। कितना ईजी है, देखो कितना सिंपल था। सम ऑफ द टू नंबर, देखो कभी भी सम ऑफ द टू नंबर आ गया तो क्या करना है, एक अगर x होगा तो दूसरा होगा 95 माइनस x, याद रखो। इसलिए मैंने कल, यू रिमेंबर दैट एज आई गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, कीप इन फ्रंट ऑफ यू, विल कम टू नो एवरीथिंग। ओके, तो ये आ गया। इफ वन एक्सीड्स अदर एनी वन ऑफ दिस वन, तो इमेजिन करो ये, तो x एक्सीड्स का मतलब है इक्वल टू साइन, वही x इज द अदर बाय 15, मतलब ये दूसरे से 15 से बड़ा है। एक्सीड्स इट इज़ मोर दैन, तो 15 से बड़ा है, मतलब 95 माइनस एक्स प्लस 15। ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर है। द सेकेंड नंबर इज 15 से ये बड़ा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये x इधर शिफ्ट करो 2x आ जाएगा एंड यू गेट योर आंसर इजी। ओके, तो स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कैसे करना है समझ लो। ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशो, तो एक नंबर होगा 5x एंड दूसरा होगा 3x इफ आफ्टर टेकिंग दे डिफर बाय दिस, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। अरे दैट्स इट, कुछ है नहीं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, x प्लस 1 x प्लस 2। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सिंपल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं x प्लस 1 x प्लस 2, एडिशन 51। Sum of 3 consecutive multiple of 8, तो 8 x plus 8 x plus 16, that's it, आंसर तो इक्वेशन तो मिल जाएगा। 3 consecutive integers are such that, इंटीजर्स 3 consecutive integers क्या आएंगे, x plus 1 x plus 2, such that they are taken in increasing order। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो एंड वी गेट एड अप टू 74, तो ये आ जाएगा 74। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। देखो कितना इजी है, कुछ नहीं है, दैट्स व्हाट आई सेड के एक छोटे छोटे स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो करोगे ना, थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो दिस वन, तो राहुल का एज होगा 5x, हरून का एज होगा 7x। देखो 4 ईयर्स लेटर, तो आफ्टर 4, बाकी रीड ही नहीं करना है। जब भी आप लोग 4 ईयर्स आफ्टर, 4 ईयर्स बिफोर, 3 ईयर्स बिफोर ऐसा कुछ देखेगा तो आफ्टर पहले लिख लो, आफ्टर 4 ईयर्स
राहुल क्या होगा 4x 5x प्लस 4 एंड हरून का एज क्या होगा 7x प्लस 4। ठीक है, अभी इसके बारे में हमें बोलना है। ठीक है, देखते हैं 4 इज लेटर देर सम ऑफ देयर एजेस, तो इन दोनों का एडिशन देखो कितना ईजी है यार। 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना 56 ईयर्स, दैट्स इट। अभी इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग इजीली। द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन द रेशो, देखो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन द रेशो ये। ठीक है, तो इसका मतलब बॉयज़ विल बी 7x एंड गर्ल्स विल बी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज मेंशन एवरीथिंग प्रॉपरली। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज इज मीन्स इक्वल टू बॉयज 7x इज 8 मोर देन प्लस 8 दैन गर्ल्स तो 5x। इसको स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करने के लिए देखा, तो टोटल क्लास मतलब 5x प्लस 7x करना है, मतलब जो भी x पहले फाइंड करो एंड उसके बाद टोटल क्लास का स्ट्रेंथ फाइंड करो, ये तो कॉमन सेंस है। दैट्स इट यार, कितना सिंपल है देखिए। ओके, 11th क्वेश्चन, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बाईचुंग्स। हाँ, ये थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन है, मतलब दैट कंफ्यूजेस अननेसेसरी। तो ठीक है, देखते हैं। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन द बाईचुंग्स, तो ये बाईचुंग को हम लोग एक्स कंसिडर, बाईचुंग्स ग्रैंड फादर, ओके, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। ओके, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग बाईचुंग्स ग्रैंड फादर और बाईचुंग एज समथिंग लाइक एक्स, हम लोग फादर को एक्स करते हैं बिकॉज द फादर इज बीन कंपेयर्ड विथ बोथ द एजेस। ओके, सो लेट बाईचुंग्स फादर एज विल बी एक्स, तो ग्रैंड फादर का एज क्या होगा, कम तो नहीं होगा ग्रैंड फादर्स एज विल बी इक्वल टू एक्स प्लस कितना है देखो 29 ईयर, एंड सन का मतलब बाईचुंग का एज कितना होगा एक्स माइनस जो फादर से कम होगा, एक्स माइनस कितना होगा बाईचुंग, अच्छा 26 है, एक मिनट ना, ये 26 है एंड ये माइनस 29 है, वहाँ पे दिया। सम ऑफ द एजेस हो गया, दैट्स इट। क्यों बताऊँ बाकी, अभी है ना, सिंपल है ना। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी, ओके प्रेजेंट एज एक्स कंसिडर करते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब क्या होगा एक्स प्लस 15, देखो प्रेजेंट एज एक्स, 15 आफ्टर 15 ईयर्स कितना होगा रविज एज एक्स प्लस 15। ठीक है, एंड एक्स प्लस 15 विल बी मतलब इक्वल साइन, मतलब एक्स प्लस 15 विल बी 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज। हो गया, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, इजंट इट, एक्स मिल जाएगा। रैशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस एट दिस प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट वी गेट दिस, क्या है यार, दिस इंटू 5/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12, तो इट इज़ 5x/2, 2/3 को उधर शिफ्ट कर दिया, यू गेट योर आंसर इजीली। तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, आपको खुद से करने के लिए बोलता हूँ, डोंट वरी फॉर इट, यू विल बी एबल टू श्योरली डू इट। Lakshmi is a cashier in the bank and she has a currency notes of denominations 100, 50 and 10 respectively. Okay, ठीक है, तो ये है एंड दे आर इन द रेशो, मतलब 2:3:3, तो 100 के रुपीज़ 100 के नोट्स कितने हैं 2x, रुपीज़ 50 के नोट्स कितने हैं 3x एंड रुपीज़ 10 के नोट्स कितने हैं 5x। ठीक है, समझ में आ गया। तो whenever don't write just note, तो इसके अमाउंट क्या होगी, अमाउंट विल बी 100 इंटू 2x, ये तो पता चल गया आपको अभी तक 200x, हमेशा याद रखो उसको, अमाउंट लिखो, सो दैट थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू एंड यू वोंट गेट कन्फ्यूज। ओके, तो ये अमाउंट क्या होगा 10 इंटू 5x, तो 50x अमाउंट हो जाएगा। इफ द टोटल कैश दैट मीन्स अमाउंट इन सबका एडिशन, तो आपका इक्वेशन होगा 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4000 और सॉरी 4 लाख। ओके, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड द एक्स वैल्यू, बराबर है कि नहीं। सो सिंपल, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट वाला खुद से करोगे, ट्राई करोगे, देखो कंडीशन कैन बी डिफरेंट, कंडीशन माइट बी डिफरेंट, तो आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के बाकी क्वेश्चंस करना है। तो आई होप दैट यू कैन डू इट, आई होप यू कैन डू इट। Organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and the participant who does not win should get prize of 25 rupees. Total prize money distributed is these many. Find the number of winner if the total participants are
63. Okay. So the participants total. So it's like sum. So let X are winner. ठीक है. तो remaining must be only participants. तो 63 minus X जो हमने sum के लिए देखा था, you remember? Sum is like that. तो same thing. Six are participants. Now winner के लिए कितना प्राइस है? 100 रुपीज. सो प्राइस मनी will be equal to 100 into X. So it will be 100X. And यहाँ पे prize money will be 25 into 63 minus X. That will be something, जो भी होगा. Total of this 100X plus this is going to be equal to 3000. That's it. Okay. You can solve this question, isn't it? फिर भी अगर solve करते वक्त कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, you can surely that very word. So I will help you in that as well. So thank you so much. Bye bye. See you tomorrow.